নগাঁৱৰ মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্তত কৃষক বিদ্ৰোহ। I must congratulate the News 18 group for this wonderful effort, and Akshay ji and everybody, those who are part of this mission. When we look at India, it's very diverse. One part of India is absolutely dry, another part of India is absolutely flooded. But the thing is, how we manage this disparity in water resources. Overall, India is a water deficient country. But since our consumptions are increasing day by day, so it's going to be more a water deficient nation. So water conservation is so important. I think that is why Honorable Prime Minister Modi ji has constituted this new ministry called Jal Shakti Mantralaya. Yes. Jal Shakti only because unless we focus on the water conservation in a very concentrated and focused manner, we won't be able to deal with this challenge which we are going to face. Right now, India has around $2,000 per capita income. Even if we double that income to 4,000, so water consumption also will increase along with the living standards, along with the increase in economic activities and all. So the coming days are going to be very, very challenging. Now, from my state, Arunachal is one of those water surplus state where almost 6 months it's raining or snowbound in the upper reaches, and lower part also it's very, very tropical region, so it's a water sufficient state. But having said that, within that water, you can say a surplus state, but still we have certain problems because of the climate change, because of depletion of the catchment areas and so many things. So in my ministry, I have around 75 lakhs youth force. That is the largest in the world. Now I have called upon my youth volunteers to take water conservation effort at their focus for whatever you do, but bring water conservation effort into the focus, because Jal is Jeevan, we all know. Unless we sensitize the people in the basic conservation of water to how to utilize it optimum, do not waste water. Right from conservation to utilization, we need to bring change. I think that is what Prime Minister has launched, this Jal Jeevan mission, as well as Atal Jal Yojana, yes, to reach out to every household with a water tap. Water should be available to every household. But that will be possible only if we have water resources. So that is why conservation of water becomes absolutely important, and I am very happy that other than the government, the private corporation people, local NGOs, activists, and people like you all are doing amazing job. Kiranji, we have Akshay Kumar, who's decided that he's going to walk 21 kilometers on the treadmill today to ensure that we are all on a mission mode, that women in our country don't have to walk miles to get water. That's what Akshay is doing. I have Cyrus with me, Shreya is with me, and Cyrus wants to ask you something. Yeah. Kiranji, sorry, this is Cyrus Brocha, award-winning, international acclaimed anchor. Just off track for a second, sir. 2020 ka jo Olympics, it's moved to 2021. Hopefully, I think June mein Tokyo. Me and Anand were wondering if you could use some influence and help us get into the synchronized swimming team. We have been practicing and no one is taking us seriously. So if you could send you a video later, and if you could just look at it, and if you can find it in your heart to help us, it would make our families very proud. किरण जी, अक्षय कुमार बोल रहे हैं. Sir is not replying. Akshay ji, I am taking Cyrus seriously. Please take him seriously. Yeah. किरण जी, अक्षय बोल रहा हूँ. नमस्कार. सर जी नमस्कार अक्षय जी, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया जी. मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट को इस देश का धर्म कहा जाता है. क्या आपको लगता है कि क्रिकेट खिलाड़ियां और दूसरे स्पोर्ट्स के फेसेस को सोशल चेंज के ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है? बिल्कुल. सबसे पहले तो आप जो पैदल चल रहे हैं वहां पे, जो आप ट्रेडमिल लगा के चल रहे हैं, उसके लिए बधाई हो. ये भी अपने आप में फिटनेस का बड़ा एक संदेश है. क्रिकेट
बिल्कुल हमारे देश में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, बट मैं जो कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स है, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जो पूरा दुनिया खेलता है, ऐसा जो खेल है, उसको भी मैं प्रमोट कर रहा हूं। तो सारा खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे अन्य देसी खिलाड़ी हो, जो पारंपरिक भारतीय खेल के खिलाड़ी हो, जैसे कबड्डी, खो खो, मलखम्ब, तंगथा, कलरपट्टू या गटका, इस तरह के जितने भी जो खिलाड़ी है वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। खिलाड़ी एक देश का गौरव होते हैं, तो उनको भी हम अभियान में जुड़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सारा, जैसे मैंने कहा, मेरे यूथ वॉलंटियर्स के साथ साथ मेरे पास जो खेल मंत्रालय है उसके तहत जितना खिलाड़ी है उनसे मैं संपर्क करता हूं, और जो अच्छा जो सामाजिक इश्यूज है उसको लेकर के मैं खिलाड़ियों को भी कहता हूं कि आप प्रोत्साहित करें। आप आगे जो देश के लिए खेलते खेलते सोशल काम में भी आप इन्फ्लुएंस करते रहिए, ताकि देश सेवा होते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भारत खेल महाशक्ति बने, और साथ साथ खिलाड़ी मेडल जीतने के साथ साथ और अच्छे कामों में भी आए देश के लिए। इसका मेरा हमेशा से एक प्रायोरिटी रहा है। मिस्टर रिजिजू, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ऑन दिस वेरी स्पेशल हाउ कैन आई कांटेक्ट लेटर? अगर वो मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ चलना चाहिए अपना कोविड टेस्ट कराने के बाद। वी आर स्लिपिंग इन। थैंक यू मिस्टर रिजिजू फॉर जॉइनिंग अस। वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक हियर ऑन मिशन पानी। देयर इज लॉट्स लाइंड अप, सो डू स्टे विद अस। की वैल्यूज परफेक्शन में लाए हैं। अभी भी आगे काफी चलना है, लेकिन ये करिकुलम उन स्कूल्स और उन सेगमेंट्स में जारी होगा जहां पे पानी की एक तो महसूस है, लोग महसूस करते हैं उसकी कमी या उसकी वैल्यू, और एक तरीके से कि जहां पे बच्चे समझ सकें कि ये एलिमेंट, ये ऐसा है, ये प्रेशियस है, ये हमारे देश का बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। और ये करिकुला जो है वो कैपेसिटी डेवलप करेगा टीचर्स में, और उसमें मॉड्यूल्स हैं जैसे कि वाटर बेसिक्स, वाटर एंड मी, वाटर एंड फैमिली, वाटर इन स्कूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक चीज एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, क्योंकि नीति आयोग के रिपोर्ट के उसको वैल्यू करते हुए, उसको देखते हुए, वो कहते हैं कि हमारी वाटर डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1419 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जैसे 2030 तक हम आगे बढ़ेंगे, और हमारी अवेलेबिलिटी है अप्रोक्सीमेटली हाफ। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने सैनिटेशन, अपनी ड्रिंकिंग, एंड ऑल्सो फॉर द वाइल्ड लाइफ विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वाटर, बोथ एम्फीबियन एंड टेरेस्ट्रियल। सो ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने शुरू किया था राजस्थान में करीब 20 साल पहले, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। अब वो प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो हमारी ज्योग्राफीज हैं, जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरठ और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, गंगा के बेसिन के ऊपर, वाटर स्कूल जो है पंजाब में ब्यास रिवर के साथ, और बेंगलोर रूरल और बेंगलोर सिटी के अंदर भी ये प्रोग्राम जारी है। अब हमारा अपने पार्टनरशिप के साथ, अपने रैकेट बेनकाइजर के साथ और स्वरोस्की के साथ, एंड हेल्प फ्रॉम द मिनिस्ट्री, एज द मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली गिवन गाइडेंस, वी विल टेक इट फॉरवर्ड as much as possible to the rest of India. Wow. Develop it in a way that gives leadership, it gives initiation, originality and confidence in people and the school children and their teachers कि हम लोग इसको एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कमेंडेबल और लॉडेबल एफर्ट तो है, लेकिन इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ऐसी बहुत इनिशिएटिव्स हमारे देश में हो रही है, और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में इतना काम होता है कभी इनिशिएशन के साथ, वो बहुत है। एंड सेकेंडली, थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग अबाउट, थैंक यू फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स हु वर देयर अर्लियर एंड हु आर गोइंग टू कम आफ्टर मी, एंड थैंक यू वेरी मच अक्षय। I have a little piece of advice for you, two small points. One is, with experience I can say that when you are walking 21 kilometers, please make sure
that the last kilometer is your best. Okay. And I hope after you finish, the goal, we all hope to see Cyrus on the machine as well, and I hope he takes up the challenge. Thank you. मैं कुछ बोला भी जी, नहीं। आपसे कुछ मैं सवाल करना चाहूंगा। मैं अक्षय बोल रहा हूं। हेलो जी निशंक जी सर। हाँ जी। सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल में कम उम्र में ही पानी से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए? इससे फायदे क्या हो सकते हैं उनके? एक्चुअली जो सेगमेंट है जिनको ये इफेक्ट चलता है और जो ये अपने और ग्रुप्स में भी जाकर बता सकते हैं, वो होता है क्लास 6 और क्लास 8 से। तो उनको ये महसूस होता है, एंड दे कैन स्प्रेड द मैसेज that it is not just conservation of water, it's also wise use of water. जी जी So हर चीज में जैसे कि हम कहते हैं सबसे ज्यादा हमको सबसे पहले तो होता है ड्रिंकिंग वाटर, फिर अपने फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिर इंडस्ट्री का नाम आता है। जी तो इनको ये सब चीजें बताने के लिए कि भाई कैसे ये होगा, आगे चल के हमें कमी आएगी, ग्राउंड वाटर कैसे हम बचाएंगे, ये सब चीजें इनको सिखाई जाती हैं और एक्चुअली प्रैक्टिस से सिखाई जाती है। और थोड़ा सा ये भी उनको सिखाया जाता है कि ऐसा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो एम्फीबियंस हैं, जो फिश है, जो ऑटर्स हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, इनका भी थोड़ा सा हक है। उनका भी थोड़ा सा 3%, 5%, 15% जो भी कुछ है, उनका भी इस पानी में भी हक है। तो एक तरीके से सारा ये एनवायरनमेंट, सारा पर्यावरण, सारा ये नेटवर्क जो है लिविंग लाइफ का, इसमें उनको समझाया जाता है, दैट विल बी बेटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जैसे आपने कहा। सिंह साहब, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे साथ हैं। अक्षय उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता मैं हूं। उनसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा जो मैंने अभी पूछा था। सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल में, जैसे मैं पूछ रहा था, कि कम उम्र में ही पानी से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए और उससे फायदे क्या हो सकते हैं उनके? हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण से, उस प्रकृति से अपने बच्चे को बचपन से ही जोड़े, उसको पाठ्यक्रम के रूप में जोड़े, उसको ये महसूस कराएं कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। प्रकृति है तो यदि प्रकृति के अनुरूप आप चलेंगे तो वो संस्कृति होती है, और संस्कृति हमें संस्कारों का काम करती है, रचना का काम करती है, निर्माण का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है, बढ़ने का काम करती है, और शांति का और सुख का काम करती है। लेकिन यदि प्रकृति के साथ आप का समन्वय नहीं है तो वही प्रकृति विकृति के रूप में परिवर्तित होती है, और फिर वो विकृति विनाश का कारण बनती है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए ये समझना पड़ेगा, इसलिए इस मन को समझना पड़ेगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी और सिंह साहब, thank you so much. Quickly moving on to somebody, it's a great pleasure to be able to speak to him. It's a fan moment for me, because we are joined by Grandmaster Vishwanathan Anand, former World Chess Champion, who's also now the Environment Education Ambassador for WWF India. Vishi, thank you so much. Your moves have always made a mark, whether on or off the chessboard. Please take us through your journey from being a Grandmaster to a climate warrior. Thank you. Chess is all about making moves and facing the consequences. And at some level, we all perceive that the moves we have made in many areas concerning the environment, not just with water, but in the environment, that the consequences we are just beginning to face. The environment is in trouble in so many levels, and on top of that, there is the threat of climate change, which makes everything worse. But it also began in a simpler way. You remember the things that give you the most pleasure. I remember playing in the garden or going for a walk, things like that. Then when I started traveling and I could go to cities where they have lovely rivers or streams that you can pass by and you enjoy it so much. And you begin to see the connection between that and the state of our waterways, our rivers, just our whole water infrastructure. So
it's a concern that's building up a long time. On top of that, Chennai has suffered from a drought and floods 1 year after the next. Just a short while back, we ran out of water and all the water had to be trucked in. And it's just a feeling that this cannot go on any longer, and we cannot only react when things fall apart. We have to start earlier. Very well said. Very well said. I have a question. This is Akshay here. Hi, hello. Hi. इस शानदार गेम से जुड़ी हुई एक मेरी क्वेरी है कि मैंने अक्सर देखा है कि चेस प्लेयर्स मैच के दौरान लगातार पानी के सिप मारते रहते हैं. Is it that they get dehydrated while playing chess? Do you burn a lot of calories or something while playing chess? Is it true? Yes, it is. You do burn calories, but I think specifically a lot of chess players, including myself, when you're nervous, you tend to just keep swallowing, and that's why you get thirsty suddenly. It's also a nervous reaction to the tension at the board, but that's why we do it. Vishy, can I interrupt quickly? Very quickly, we're running out of time. I've sent some proposals to the chess federations to improve the popularity of the sport, etc. And they've not taken it seriously. One of my measures was including cheerleaders during tournaments, and for some reason they don't write back. Well, I think your earlier suggestion of doing synchronized swimming, maybe with the chessboard, we could do something on the pool. That might be wonderful to popularize both events. Thank you, Vishy. See, at last, it takes an astute mind to recognize another astute mind. You can see the difference. Absolutely. Yes, in the water. Yeah. Pani, that's the whole concept. The Pani concept. Well, it takes a Vishy to understand a side. Right? A Vishy to understand a washi. हमें सहयोग करेगी तो हम वहां भी इस प्रकार का काम करेंगे. और आपको पता होगा लातूर में जहां ट्रेन से पानी लाया गया था, वहां हम ब्रिज कम बंधारा बना रहे. ब्रिज और ब्रिज के नीचे पानी को रोकने के लिए बंधारा बना रहे. 170 बंधारे महाराष्ट्र में बना रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सहयोग कर रही है. यही सहयोग अगर मध्य प्रदेश की और गुजरात की और बाकी राजस्थान की सरकार करेगी तो उनके यहाँ भी यही काम निःशुल्क करने के लिए हम तैयार हैं. मैं बार बार इसका फॉलोअप भी करता हूं और उनको प्रार्थना भी करता हूं कि वो इसका जरूर फायदा ले. नीति आयोग ने भी इस मॉडल को मान्यता दी है. वाह. गडकरी साहब, साइरस ब्रोचा दिस साइड. सर, एक ये नौकरी और पैसा की बातचीत हुई ना, तो याद है अभी कि मेरे एक खास दोस्त है कुणाल विजेकर साहब, वेरी फेमस इन साउथ मुंबई, और नौकरी के सवाल है तो ही इज लुकिंग फॉर वर्क इन शिपिंग या ट्रांसपोर्ट लाइन. तो अगर आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं हमारे लिए, वीड बी वेरी ग्रेटफुल सर. अब CEO, GM जो भी छोटे मोटे जो भी है. पहली बात तो आप मीडिया में है और मैं आपके सामने विश्वास के साथ बता रहा हूं, मैं कोई सेटिंग नहीं करता. पिछले 5 साल में 17 लाख करोड़ रुपए के काम हम कर सके, पर एक भी कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी. हम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और करप्शन फ्री है. पर उनको लीगल वे से काम कैसे मिल सकता है, इसके लिए मैं मदद कर सकता हूं. मुझे बहुत लोग मिलते हैं, उनको मुझे मिलने के लिए कहिए, मैं उनकी मदद करूंगा. क्या बात है नितिन जी, उसकी कैपेसिटी तो नहीं है इस लाइन में, तो विदाउट इन्फ्लुएंस कुछ नहीं हो पाएगा. आपको केंद्रीय कैबिनेट का हीरा कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि आपके किसी भी काम में कोई नुक्स नहीं निकाला जा सकता. आप बेसिकली मैं ये कहूँगा, मैंने आपके साथ एड्स भी किए हैं, मतलब हाईवे के लिए एड्स किए हैं. आप एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट हैं. मेरा एक सवाल ये है कि क्या देश को पानी बचाना, पानी बढ़ाना जैसे नए नारे की जरूरत है? क्या पानी का संकट राष्ट्रीय एजेंडा बन सकता है, उसको बनाया जा सकता है आगे जाके? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में पानी का संकट है जी, पर पानी की कमी नहीं है जी. अभी आपको देखो, आंध्र प्रदेश में मैं एक पोलावरम करके डैम, उस समय जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, बना रहा था, तो वहां कम से कम 1100 TMC पानी समुद्र में जा रहा है जी. अगर वही पानी रोककर अगर हम लोग कहीं रोकते हैं तो आंध्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैंने एक योजना बनाई थी कि गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का कावेरी में, और कावेरी का टेल एंड टू तमिलनाडु तक
तो पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। वाटर कंजर्वेशन के कार्यक्रम करने के लिए समाज सरकार में जागरूकता लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश का सिंचन इरिगेशन ये 60% से ज्यादा बढ़ सकता है और ये बढ़ेगा। और वो ड्रिप इरिगेशन से अगर पानी देंगे तो किसान की आमदनी, उसका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा और ये देश सही में एग्रीकल्चर में बहुत यशस्वी होगा। बिल्कुल यही, जैसा आपने कहा ना कि पानी की कमी नहीं है, पानी का संकट जरूर है मंत्री जी, लेकिन अब ये जो पूरा संचालन कैसे करना है वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता फैले इस मिशन पानी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशोर, मगर पहले जाने के पहले वो पर्सनल फोन नंबर, मोबाइल नंबर तो देना पड़ेगा ना, कांटेक्ट कैसे करोगे? वो डांट देते हैं। अच्छा, वो डांट भी देते हैं। मत पूछो। नितिन जी, जाते जाते मैं बस एक आग्रह आपसे करना, उनको भिजवा दो, मैं उनको देखो, मैं रोजगार देने का काम कर दूंगा। नितिन जी, अक्षय ने आज एक मुहिम छेड़ी है। आज हमारी भेंट कुछ महिलाओं से हुई जो पालघर से हैं, जो रोज जिनको 3 किलोमीटर एक डिस्टेंस चलना पड़ता है और 6 किलोमीटर यानी दिन का पानी ढोने के लिए। अक्षय ने एक मुहिम छेड़ी है कि वो खुद 21 किलोमीटर चल के उस पेन को जरा फील करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर हम में एक चेतना जगे देश में कि किसी महिला को चलने की जरूरत ना पड़े पानी के लिए। वैसे काफी इंप्रूवमेंट हुई है देश में तो हाँ, इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल अच्छी स्कीम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप इसको अगर अमल कर सके तो करिए। घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, ऑफिस का पानी ऑफिस में, खेत का पानी खेत में। यही कंजर्वेशन करेंगे तो हर कुआं 24 घंटे चलेगा, तो कहाँ 3 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वही कुएं में पानी 24 घंटे मिलेगा और साफ सुथरा अच्छा पानी मिलेगा। बहुत सही बात कही आपने नितिन जी। जब भी आपसे बात करते हैं थोड़ा ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, प्रेरणा मिल जाती है किशोर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्सनल ईमेल फोन नंबर मिल जाएगा। फोन नंबर तुम तो आप कोशिश करो। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मिशन पानी की मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी ये वाटरथॉन, और जिसमें अक्षय अभी भी ट्रेडमिल पर जारी हैं। और ये मुहिम सिर्फ ये मुहिम नहीं, ये जंग है। ये जंग है क्योंकि ये पानी की जंग इस देश की सबसे अहम जंग है। ये समझिए सबसे अहम जंग है। अगर इस देश में सब कुछ जो जितनी भी हम बातें करते हैं विकास की, अर्थव्यवस्था की, सब पानी से जुड़ा हुआ है जी। महाराष्ट्र के सोलापुर के गुमनाम से परितवाड़ी कस्बे का एक स्कूल है, अब उसकी बात करते हैं। पूरी दुनिया में चमक रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्कूल के एक टीचर को $10 लाख का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, क्योंकि उस टीचर ने आदिवासी समुदाय की बच्चियों की जिंदगी बदल दी। इतना ही नहीं, उस टीचर ने इनाम की आधी रकम उन दूसरे 9 लोगों को दे दी जो उसके साथ फाइनल में पहुंचे थे। रंजीत सिंह दिसाले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे रूबरू होना वाकई फख्र की बात है। रंजीत सिंह जी, हमारे दर्शक आपने जरूर जाना चाहेंगे कि आपने ऐसे 2-3 क्या बदलाव किए जिनकी बदौलत शिक्षा के अहम क्षेत्र में बच्चों की मुश्किलें कम हो गई, बच्चियों की पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतें दूर हो गई उस इलाके में। रंजीत सिंह जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनवाइट किया और हमारे स्कूल में जो कोई हम इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं उनके बारे में जानने की आवश्यकता। तो बेसिकली आज जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ हमारा एक प्रोजेक्ट हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने क्या किया कि जो कुछ हम हमारे स्कूल के बच्चे जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं, मान लिए वो घर में कितना लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, घर में कितनी यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे गांव में टेम्परेचर कितना है, इसका उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाया। और वो ऑब्जर्वेशन शीट के उनको पता चला कि जब 1 डिग्री से तापमान बढ़ जाता है तो हम कितना लीटर पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कितना बिजली का खपत ज्यादा होता है। तो बच्चों को ये पता चल गया कि जैसे ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारा पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन बच्चों ने एक एनालाइज किया इस डेटा को और उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि जितना भी पानी अब हमारे गांव में है वो हम कितने महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बारिश ना आ जाए तो हमारे लिए प्लान बी क्या होगा। तो बच्चों में वो एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, जिसका फलस्वरूप हम देखते हैं कि जब बच्चे
अब ये बच्चे पानी का इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से करने लगे हैं, उसको वेस्ट नहीं करने दिया जाता। जैसे हमें आपने देखा अक्षय जी, वो तमाम महिलाओं का पेन फील करना चाहते हैं, उनके लिए वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, मगर क्या कभी आपने किसी पुरुष को 2-3 किलोमीटर पानी लाने के लिए देखा है? नहीं देखा। ये असल में नहीं होता है। सभी महिलाएं घर के पानी लाने के लिए बहुत दूर चली जाती है, और वो हम मर्द हम